Hello dear student, welcome to Sri Shivaji College of Arts, Commerce and Science Akola virtually. I belongs to the Department of Chemistry and myself Kanchan Vishramji Kumbalkar, Assistant Professor. I am going to teach you about the Thermodynamics Unit 5th. The highlighted topics are already completed. This is my 10th lecture on thermodynamics, that is Unit 4. Let's start. In this lecture, we are dealing with some numerical problems depend on the Carnot heat engine. So let's start with the first example, that is calculate the efficiency of Carnot's heat engine operation between 383 Kelvin and 298 Kelvin. Now क्या पूछा है और क्या बताना है, क्या कैलकुलेट करना है. इन्होंने पूछा है कि इफ़िशियंसी ऑफ Carnot हीट इंजन निकालनी है. गिवन क्या है, तो देर आर द टू रेंजेस ऑफ टेम्परेचर हैज़ बिन गिवन. पहला टेम्परेचर दिया है दैट इज़ 383 केल्विन और दूसरा टेम्परेचर दिया है दैट इज़ 298 केल्विन. फॉर 383 केल्विन देखो टेम्परेचर एक्चुअली 3 यूनिट रहते हैं. इस यूनिट में आपको 2 ही यूनिट का काम रहेगा. आइदर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिए रहेंगे या फिर इन अ केल्विन. अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दिए हैं तो यू शुड कन्वर्ट इट इनटू अ केल्विन. तो कैसे चेंज करेंगे, डिग्री सेल्सियस का कन्वर्शन अगर केल्विन में करना है तो उस टेम्परेचर के रेंज में आपको 273 ऐड करना होगा. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टेक अ 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मुझे कैलकुलेशन के लिए केल्विन के टर्म में वो टेम्परेचर लगेगा, इसीलिए मैं उसमें 273 ऐड करूँगी और जो भी आएगा दैट इज़ 225 प्लस 273 it gives a 298 Kelvin. So 25 degree Celsius is considered as the 298 Kelvin. But अगर कैलकुलेशन में अगर गिवन में केल्विन दिया है तो देर इज़ नो एनी बॉदरेशन, देर इज़ नो एनी कन्वर्शन, वी कैन टेक इट डायरेक्टली. सो यहाँ पे केल्विन में दिए हैं द हायर टेम्परेचर इज़ काउंटेड एज अ T2 and the lower temperature is counted as a T1. So 383 Kelvin is considered as the T2 and 298 Kelvin is considered as the T1. Now क्या पूछा है, तो efficiency of Carnot heat engine. तो efficiency पूछा है तो efficiency किस में देंगे, that is eta. Eta is equal to T2 minus T1 divided by T2. ये जो divided by T2 है ये पूरे T1 and T2 को both ये पूरे टर्म को है. सो रिमेंबर अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल बेसिक रूल, एक रूल था कंचे भागो बेव, पहले ब्रैकेट छुड़ाना पड़ेगा, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन. तो यहाँ पे तो कोई इशू नहीं है, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, देन डिवाइड बाय T2. So put the value for the efficiency, put the value of T2 and T1 in this given equation. तो T2 दिया है 383 Kelvin और T1 दिया है 298 Kelvin. Put the value and we get the 0.222 efficiency of the Carnot heat engine. Now it is the efficiency normal without percentage. अगर percentage में निकालना है तो 100 के लिए 1, तो ये कैसे कन्वर्ट होगा, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विद दैट ऑफ द 100, या सिंपली ये जो भी वैल्यू आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करो एंड यू गेट द efficiency in percentage. So the answer for this example is 22.2% efficiency. Efficiency मतलब क्या, suppose you are giving a heat to a particular heat engine. एक Carnot हीट इंजन को आपने एक पर्टिकुलर हीट कंटेंट दे दिया एंड वो हीट वो पूरा का पूरा वर्क में कन्वर्ट कर रहा है. इफ़ इट इज़ हैपेंड देन इट इज़ कंसिडर्ड एज द, इफ़ इट इज़ हैपेंड 100% देन इट इज़ काउंटेड एज अ, it's a 100% efficient. If it is not, then it is less efficient and that can be counted up to the 100%. So this is the first example. Let's check out for the second example.
Second example, a heat engine working between the temperature range that is 27 डिग्री सेल्सियस एंड 200 डिग्री सेल्सियस. देखो इस एग्जाम्पल में टेम्परेचर की रेंज डिग्री सेल्सियस में दिए है, that is 27 degree Celsius and 200 degree Celsius, and the heat absorbed, that is Q2, has been given, that is 940 joule. Now अब इन्होंने पूछा है कि कैलकुलेट वर्क डन, heat rejected and efficiency of heat engine. Now a heat engine working between 27 degree Celsius and 200 degree Celsius absorb 940 joule. Now from the higher temperature calculate the work done. So let's start with work done. Now given क्या है 27 डिग्री सेल्सियस T1 रहेगा, हायर टेम्परेचर T2 दैट इज़ 200 डिग्री सेल्सियस, बट ये डिग्री सेल्सियस में दिया है और कैलकुलेशन के लिए हमें लगेगा केल्विन में. Hence the T1 get converted into Kelvin by adding 273. So 27 plus 273 is equal to 300 Kelvin. Similarly, T2 is equal to 200 plus 273 is equal to 473 Kelvin. मतलब इन सिंपल वे अगर डिग्री सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्ट करना है तो उसमें हमें 273 ये टर्म ऐड करना पड़ेगा, तो वो जो आएगा दैट इज़ इन द टर्म ऑफ केल्विन. अब हमारे T1 एंड T2 रेडी है. सेकेंड गिवन है दैट इज़ हीट एब्जॉर्ब. देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट, heat absorbed which is indicated as a Q2 and heat rejected which is indicated as a Q1. Heat rejected Q1 and heat absorbed that is Q2. Now पहला क्या निकालना है, that is work done. Now work done, that is W, is written as a Q2 into the efficiency of heat engine, that is T2 minus T1 divided by T2. So work done can be written as the heat absorbed into efficiency. जितना वो हीट लेगा और जितने एफिशिएंट वो होगा वो पूरा का पूरा मीन्स व्हाट इज़ द बेसिक कंसेप्ट बिटवीन बिहाइंड दिस इज दैट व्हेन अ हीट इंजन absorb a heat, if it is 100% efficient, means the amount of heat which has been absorbed is completely converted or 100% get converted into work. So work and absorb heat is dependent on the efficiency of the heat engine. Means work is equal to Q2 into the efficiency, which can be calculated by means of T2 minus T1 divided by T2. Now put the value of Q2, that is 940, then into put the T2 and T1, that is 473 minus 300 divided by 473. आप सबको कंचे भागु बेव ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ्स पता है. पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड एट द लास्ट सब्सट्रैक्शन. तो पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज़ 473 माइनस 300 दैट इज़ 173 डिवाइडेड बाय 473, देन 173 divided by 473 that is equal to 0.3657, and at the last multiplication between 940 into 0.3657. Now this 0.3657 it is nothing but a efficiency of heat engine. देखो पहले ही इसमें वर्क डन निकलने से पहले ही efficiency of heat engine में निकल गया. That can put in a separate way also. Now multiplying this 940 into the efficiency, we get a final value, that is work done. Now this is in a Kelvin, this is in a Kelvin, and this is in a joule. So Kelvin get cancelled out and the remaining unit is a joule. Hence the work done counted in a joule. जो भी आंसर आएगा आपका वो जूल में आएगा. So the answer is 343.80 जूल. ये आंसर थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, अगर आप जितना पॉइंट्स आगे पीछे ले सकते हो तो 80.1 और 80.2 वगैरह ये आ सकता है. नेक्स्ट वन, अब वर्क डन निकल गया. द नेक्स्ट वन इज़ द हीट रिजेक्टेड. वी नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट, Q2 एंड Q1. Q1 इज़ द हीट रिजेक्टेड एंड Q2 इज़ द हीट एब्जॉर्ब, एंड दे आर इंटर रिलेटेड विद दैट ऑफ द W. जितना वो हीट लेगा उसमें से कुछ हीट वो वर्क में कन्वर्ट करेगा, जितनी इफ़िशेंसी रहेगी उतनी. सपोज़
वो 100% इफ़िशेंट है तो वो पूरा हीट एब्जॉर्ब करेगा और 100% कन्वर्टेड इनटू वर्क हो जाएगा। बट अगर वो 50% ही इफ़िशेंट है, काम करता है, तो हीट वो लेगा 100% लेगा वो, लेकिन 50% ही वर्क में कन्वर्ट करेगा और 50% वो रिजेक्ट कर देगा। सो it is a simple method to identify a heat rejected is that Q1 is equal to the heat absorb minus W। जितना भी वो हीट लेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, उसमें से वो कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट करेगा और द रिमेनिंग इज गेट रिजेक्टेड। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। हेंस द Q1 is equal to Q2 minus W। Q2 is equal to 940 minus W previous में निकाला है, that is 343.80, and the final by by subtraction we get a 596.2, again the same, Q2 in a joule, W is in a joule, hence the answer unit of answer is in a joule. Now next one is the efficiency. Now efficiency निकाली थी, that is T2 minus T1 divided by T2, that is 473 minus 300 divided by 473, that is 173 divided by 473, वो आ गई थी 0.3657 में। अगर परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए तो मल्टीप्लाई विथ 100 करना पड़ेगा, सो इट इज़ इक्वल टू 36.57%, एंड दिस इज़ नथिंग बट अ इफिशियंसी ऑफ द हीट इंजन। तो इस तरीके से वर्क डन दैट इज़ 343.80, then heat rejected that is 596.2, and the last one the efficiency that is 36.57. These are the answer of second example. Now let's check out the next third example. A Carnot heat engine has an efficiency of 0.69 and take up 300 joule of heat from source at 127 degrees Celsius. So calculate the work done and the temperature of sink. देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है, इफ़िशियंसी दिया है, दैट इज़ ईटा दिया है। वी नो दैट ईटा कैन बी रिटन इन द सेंस ऑफ T2 minus T1 डिवाइडेड बाय T2, दिस इज़ द इफ़िशियंसी। तो ईटा दिया है और वहाँ पे Q2 भी दिया है, दैट इज़ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम दैट ऑफ द सोर्स। हीट सोर्स से एब्जॉर्ब होता है और हीट रिजेक्ट टू द सिंक होता है। सो रिमेंबर Q1 it is related with sink and Q2 is related with source. So this is the term is Q2, that is heat absorb. So यहाँ पे W and the temperature of sink निकालना है। So T2 is the initial temperature and T1 is the temperature of sink. तो T2 दिया है, ईटा दिया है, Q2 दिया है, हमें निकालना है T1 एंड वर्क डन। नाउ पहले वर्क डन निकालते हैं। द ईटा इज इक्वल टू W अपॉन Q2। सो द if we take this Q2 to the another side, we get a eta into Q2 equals to W. So W is equal to eta into Q2. Now put the values of eta and Q2 which has been given in example. Example में जो दिया है eta और Q2 की वैल्यू, eta कितना दिया है, that is efficiency is equal to 0.69 और heat absorb is given 300 joule. इसका यूनिट नहीं है, इसका यूनिट जूल है, तो आंसर में क्या आएगा, जूल ही आएगा। सो मल्टीप्लाई दिस विथ 300, वी गेट अ 207 जूल। दिस इज द वर्क डन इन जूल बाय द Carnot हीट इंजन। नाउ सेकेंड कैलकुलेट करना है द टेम्परेचर ऑफ सिंक। वी नो दैट इफिशियंसी क्या है, इफिशियंसी इट इज़ गिवन इन अ T2 minus T1 डिवाइडेड बाय T2। जो हायर टेम्परेचर रहेगा दैट इज़ द सोर्स टेम्परेचर, दैट इज़ T2. T2 इज़ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड T1 इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिंक. Hence efficiency can be written as the temperature of source minus temperature of sink divided by temperature of source. Now put the value. आपको गिवन क्या है, ईटा की वैल्यू गिवन है दैट इज़ 0.69, T2 की वैल्यू गिवन है दैट इज़ योर
127 डिग्री सेल्सियस। सो 127 डिग्री सेल्सियस को 273 में ऐड करना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू 400 केल्विन। दिस इज द वैल्यू फॉर T2। तो T2 मिल गया हमें 400 केल्विन, इफिशिएंसी है 0.69। सो पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन में पुट किए वैल्यू, बिफोर दैट वी हैव टू सॉल्व इट बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट द T1 वैल्यू। अभी डिवाइड दिस T2 टू होल टर्म, T2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। तो क्या हो जाएगा, T2 डिवाइडेड बाई T2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। नाउ T1 डिवाइडेड बाई T2 हो जाएगा, ये 1 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2, तो माइनस है तो यहाँ पे चला जाएगा प्लस में, मीन्स n प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस T1 अपॉन T2। बट हमें प्लस में T1 अपॉन T2 निकालना है, तो मल्टीप्लाई विथ -1 साइन। नाउ वी गेट द T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा। ये आ गया, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू 1 माइनस ईटा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ T2, पुट द वैल्यू ऑफ ईटा। सो क्या मिलेगा, दैट इज ये T2 यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, दैट इज T2 इंटू इन अ ब्रैकेट 1 माइनस ईटा। T2 की वैल्यू 400, ईटा की वैल्यू 0.69। देन अगेन द मैथमेटिकल रूल, पहले क्या सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद में वी गेट द आंसर 0.31। नाउ द मल्टीप्लिकेशन, नाउ 400 इंटू 0.31 दैट इज इक्वल टू 124 केल्विन। अभी ये 124 केल्विन है, तो उसका अगर डिग्री सेल्सियस में करना है तो उसमें से 273 माइनस करना पड़ेगा, एंड वी गेट द टेम्परेचर ऑफ सिंक दैट इज -149 डिग्री सेल्सियस। ओके, गॉट इट? ओके, लेट्स टेक अ नेक्स्ट एग्जाम्पल। Fourth example, liquid helium boils at 4 Kelvin and liquid hydrogen boil at 200 Kelvin. What is the efficiency of reversible engine operating between heat reservoir at this temperature? For the same efficiency, calculate the temperature of hot reservoir and temperature of cold reservoir at 350 Kelvin. Now, क्या दिया हुआ है, उन्होंने दो कंडीशन दिए हैं। पहला, द कैन नॉट हीट इंजन वर्क इन अ लिक्विड हीलियम, वहाँ पे लिक्विड हीलियम बॉयल हो रहा है। और दूसरा दिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिक्विड हीलियम एंड लिक्विड हाइड्रोजन दिया है। मीन्स कंडीशन अलग है बट द इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज कॉमन इन बोथ केसेस। मीन्स ईटा जो है वो दोनों केसेस में, इंस्ट्रूमेंट तो नहीं बदल रहा है, हीट इंजन तो नहीं बदल रहा है, हीट इंजन नहीं बदल रहा है, मतलब ईटा कॉमन रहेगा इन बोथ केसेस। हेंस वी हैव टू कैलकुलेट द ईटा फर्स्ट। तो इफिशिएंसी गिवन कैसी है, इफिशिएंसी इट इज़ नथिंग बट T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T2। सो हायर टेम्परेचर क्या है, हायर टेम्परेचर गिवन है द 20 केल्विन एंड द लोअर टेम्परेचर इज 4 केल्विन। तो 20 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 20 that is equal to 0.8, that is 80%. So the efficiency is 80%. मतलब वो अगर 100 यूनिट ऑफ हीट इंजन ले रहा है तो उसमें आउट ऑफ दैट 80% में वो वर्क डन कर रहा है एंड द 20% रिमेन और इट गेट रिजेक्टेड एज अ रिजेक्टेड हीट। नाउ इन सेकेंड केस, सेकेंड केस में क्या बोला है कि व्हेन वी आर कंसिडरिंग द हीट ऑफ रिजर्वायर, रिजर्वायर मीन्स सिंक, सिंक का टेम्परेचर कितना दिया है उन्होंने, सिंक का टेम्परेचर दिया है 350 केल्विन। अब 350 केल्विन है तो इफ़िशियंसी, इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हो रहा है तो इंस्ट्रूमेंट की इफ़िशियंसी सेम रहेगी। तो ईटा इज़ कॉमन टू बोथ केसेस, जो पहले इसमें रहेगा वो भी अभी भी कंडीशन में कंसिडर होगा। तो यहाँ पे 0.8 इज़ द इफ़िशियंसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और रिजर्वायर और सिंक का टेम्परेचर क्या है, तो 350 केल्विन। तो हमें क्या निकालना है,
हमें निकालना है द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर और इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सोर्स। सोर्स जो रहेगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर इज ऑल्सो नोन एज द सोर्स जहाँ से हीट एब्जॉर्ब होगा, और कोल्ड रिजर्वायर इज नोन एज द सिंक जहाँ पे हीट रिजेक्ट होगा। नाउ T1 T2 दिया है, T2 निकालना है, T1 is given that is 350. So put the value and calculate it. Simply divide this T2 with both the terms, that is T2 divided by T2 that is equal to 1 minus 350 divided by T2. So ये 1 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा माइनस में, hence there is a 0.8 is equal to 1 minus 350 divided by T2. These are the separate term. Now this T2 इसके पीछे इसके नीचे नहीं है, डिवीजन में नहीं है। नाउ इसे प्लस में लगाने के लिए मल्टीप्लाई विद दिस होल टर्म विथ -1, सो हमें मिल जाएगा, और ये 1 को इधर लेके जाएंगे तो वी गेट 1 माइनस 0.8 इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाय T2। ये आ गया आपका T2 निकालने के लिए। अभी T2 निकालना है तो T2 को इस तरफ ले जाएंगे, दैट इज़ T2 यहाँ पे डिवीजन पे है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पे आएगा, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवीजन पे चला जाएगा। सो दिस इज 0.2 एंड दैट 0.2 गेट डिवीजन टू द 350। सो 350 डिवाइडेड बाय 0.2 इज़ नथिंग बट अ T2, एंड ये सॉल्व करने के बाद में वी गेट अ T2 एज अ 1750 केल्विन, बिकॉज 350 केल्विन में दिया है तो आंसर भी क्या आएगा, केल्विन में आएगा, बिकॉज वी कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर दैट इज सोर्स, दैट इज T2. So this is the fourth example where we calculate the temperature of hot reservoir. पहले केस में efficiency निकाले because the temperature range has been given, और दूसरे इसमें the temperature of hot reservoir has been calculated with the help of efficiency which has been calculated in previous, and the temperature of cold reservoir. Okay, now in the next lecture we will start with the concept of entropy, physical significance of entropy, and its related 3 points. So up to then, take care, be safe, thank you very much.